Namaskar, welcome to SGKG Studies YouTube channel classes, and on this channel now we are discussing about CCS pension rules 2021, and in this session we are going to discuss about emoluments and average emoluments for central government employees. So it is covered under chapter 4. It is covered under chapter 4, and under chapter 4 only two rules are there. 31 rule is emoluments, 32 rule is average emoluments. One alert is there: those who are having 1972 pension rules, this serial number may differ. So you have to be careful. We are answerable for 2021 pension rules. So whatever rule number is given in 2021 pension rule, that we are following. We are not following the rule number given in 1972. So emoluments is 31 and average emoluments 32. Now question arises, what is the need to learn emoluments and average emoluments? What necessitates to learn emoluments and average emoluments? And the answer lies: with effect from 1st January 2006, pension is calculated with reference to emoluments, that is last basic pay, or average emoluments, that is average basic pay drawn during the last 10 months of the service, whichever is more beneficial. Generally last drawn basic pay is beneficial. Generally last drawn basic pay supposed to be higher, but it's not always correct. Sometimes it may change, keeping in mind से various issues that will be discussed here. So कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट पे ड्रॉन होता है, जनरली जो लास्ट पे ड्रॉन होता है उस सर्विस का हाईएस्ट पे होता है, बट हमेशा ये सत्य नहीं होता. कई बार ऐसा भी होता है कि लास्ट पे ड्रॉन जो होता है वो कम पड़ जाता है, और तब ऐसे में एवरेज इमोलूमेंट्स को हमें काउंट करना पड़ता है. एवरेज इमोलूमेंट्स का मतलब बेसिक पे ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ द सर्विस. सो कंसेप्ट क्लियर रखना है. इमोलूमेंट means last basic pay drawn. Average emolument means basic pay drawn during the last 10 months of the service. So क्या होता है? Emoluments for the pension include band pay, grade pay and non-practicing allowances in case of doctors. This is the extract of 1972 Pension Act. Now there is no band pay, now there is no grade pay. So only basic pay plus practicing allowances. Gratuity is based upon the emoluments drawn on the date of retirement and dearness allowances thereon. So gratuity किस पर डिपेंड करती है? ग्रेचुटी जो होता है, जो लास्ट इमोलूमेंट हमने, जो लास्ट बेसिक पे हमने ड्रॉन किया है, उस लास्ट बेसिक पे का मल्टीप्लाई करके हमें ग्रेचुटी मिलता है. Average emolument shall be determined with reference to the emoluments drawn by a government servant during the last 10 months of this pay service. कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो आइए अब थोड़ा प्रोविजन देख लेते हैं. Rule 31 says emoluments. The expression emolument means basic pay as defined in Rule 9(21)(a)(1) of Fundamental Rules, which a government servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death, and will also include non-practicing allowances granted to a medical officer in lieu of private practice. So यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Emolument means सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस अप्लीकेबल टू डॉक्टर्स. So for non-doctors, only and only basic pay is basic pay drawn, last drawn. Basic pay last drawn is emolument. Stagnation increments shall be treated as emoluments for calculation of retirement benefit. So stagnation increment के बारे में हम फंडामेंटल रूल्स में पढ़ चुके हैं.
तो उसको भी इसमें काउंट किया जाएगा। Where a government servant immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on leave for which leave salary is payable. जब leave salary payable होगा तो if the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty suspend shall form part of the emoluments. अगर लीव सस्पेंशन जो कुछ भी रेगुलराइज हो गया तो आपको ऐसे ही माना जाएगा जैसे पहले कभी आप छुट्टी पर थे ही नहीं, आप सस्पेंशन में थे ही नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। इमोलूमेंट्स मीन्स बेसिक पे एज डिफाइंड इन फंडामेंटल रूल 9(21)(1)(a) प्लस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस प्लस स्टेगनेशन इंक्रीमेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इमोलूमेंट्स। सब रूल 3, वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट इमीडिएटली बिफोर हिज रिटायरमेंट और डेथ while in service had proceeded on leave for which leave salary is payable. तो लीव सैलरी पेएबल है तो आप मान के चलिए कि वो ड्यूटी पर ही है। Where a government servant immediately before his retirement or death while in service had been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension, the period thereof does not count as service. The emoluments which he drew immediately before, अगर UL पर हो गए, लीव विदाउट absent हो गए, absent विदाउट लीव हो गए, EOL हो गए, सस्पेंड हो गए, तो आपको उससे जस्ट पहले जो मिल रहा होगा वो आपका इमोलूमेंट काउंट किया जाएगा। Where a government servant immediately before his retirement or death while in service was on leave and earned an increment while he was not withheld, such increment though not actually drawn, so अगर चाहे लीव पर भी रहे हों, अगर इंक्रीमेंट मिला है तो उसको भी काउंट किया जाएगा। Pay drawn by a government servant while on deputation to ex-cadre post in the same or some other department of the government or to the armed forces shall be treated as emolument. So deputation में रहने के बाद भी जो पे ड्रॉन होता है उसी को emolument ट्रीट किया जाएगा। Pay drawn by a government servant while on deputation to a state government or while on foreign service shall not be treated as emolument, but the pay which he would have drawn under the central. So अगर फॉरेन सर्विस में होते हैं, दूसरे सर्विस में होते हैं, स्टेट सर्विस में होते हैं, तो जो वहाँ पर जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको इमोलूमेंट नहीं मानेंगे। इमोलूमेंट उसको मानेंगे जो नोशनली आपका पेरेंट डिपार्टमेंट में मिला होता। Where a pensioner who is re-employed in government service elected to retain his pension for earlier service and whose pay on re-employment has been reduced by an amount not exceeding his pension, the element of pension by which his pay is reduced shall be treated as emolument. So ये re-employed के बारे में। When a government servant has been transferred to a public sector undertaking or an autonomous body consequent upon the conversion in the department of government into the public sector, so क्या हो रहा है, autonomous body से public sector में आ रहे हैं। The emoluments drawn under the public sector undertaking or autonomous body shall be treated as emolument. Where the pay of the government servant is notionally increased with the retrospective effect in any of the following circumstances after his retirement, such notional pay shall be treated as emolument। और इसके ये कुछ कंडीशन बता दिए हैं। नेक्स्ट है, वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ ए पेनाल्टी विच हैज द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग हिज पे ओनली ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ दैट पेनाल्टी एंड ऑन द एक्सपायरी ऑफ विच ही वुड हैव रीगेन द पे एडमिसिबल टू हिम विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑफ द सेड पेनाल्टी, द नोशनल पे ऑन द डेट ऑफ डेथ इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ सच पेनाल्टी शैल बी ट्रीटेड। सो अगर किसी को कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेंडेंसी ही गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, और उसमें जो पेनल्टी मिली है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट की नहीं मिली है, नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट की मिली है, तो नोशनली उनको जितना मिलना चाहिए था उसके हिसाब से पेनल्टी को इग्नोर करते हुए उनका जो इमोलूमेंट ट्रीट किया जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको टच करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं एवरेज इमोलूमेंट्स। इससे पहले हमने देखा इमोलूमेंट्स। इमोलूमेंट्स मीन्स बेसिक पे प्लस प्रैक्टिसिंग पे फॉर द डॉक्टर्स। अब एवरेज पे की इमोलूमेंट्स की क्या ज़रूरत पड़ गई? हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा पेंशनरी बेनिफिट डिसाइड होता है वो इमोलूमेंट्स या एवरेज इमोलूमेंट्स जो भी ज़्यादा हो उसके अनुसार डिटरमाइंड होता है, तो इसलिए कैलकुलेशन करना इसका ज़रूरी हो जाता है। एवरेज इमोलूमेंट शैल बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द इमोलूमेंट ड्रॉन बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ ऑफ हिज सर्विस। सो लास्ट 10 मंथ का जितना सैलरी है उसका एवरेज निकालेंगे। लास्ट 10 मंथ की जो भी उनकी कम ज़्यादा सैलरी है उसका एवरेज निकाल करके 30 डेज का जो एवरेज निकलेगा उसी को एवरेज इमोलूमेंट्स कहते हैं। In case during the last 10 months of his service, government servant had been absent from duty on extraordinary leave or had been under suspension, the period thereof does not count as service. अगर ऐसा हो जाता है कि इस 10 महीने के भीतर में वो सस्पेंड हो गए हों या absent हो गए हों, तो उसकी स्थिति में क्या होगा? shall be in calculation of average emoluments and equal period before the 10 months shall be included. So उससे पहले, उस सस्पेंशन से पहले, उस absence से पहले का जो 10 मंथ का इक्वल पे है उसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा। तो थोड़ा सा ब्रॉड में इसको समझ लेते हैं। इफ़ द लास्ट 10 मंथ्स कंटेन द फॉलोइंग पीरियड स्पेशली ट्रीटेड एज नॉन क्वालिफाइंग पीरियड: लीव विदाउट पे, suspension, overstay of leave, the above period of leave salary pension should be disregarded and an equal period should be added before 10 month. So अगर just before the retirement 10 month period में absent हो गए हों, suspend हो गए हों, overstay हो गए हों, तो इस 10 महीने को डिसरिगार्ड कर दें, इससे पहले वाले 10 महीने को काउंट करेंगे एवरेज इमोलूमेंट्स के लिए। If the last 10 months contain the following period especially treated as qualifying service: absent from duty with leave, suspended and reinstated, the emoluments which the government servant would have been drawn had he not been absent. So कहने का मतलब ये है कि absent जो है रेगुलराइज हो गया, सस्पेंड जो है वो सस्पेंड को करने के बाद से जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई उस इंक्वायरी रिपोर्ट में उसको पूरा का पूरा उसको माफ़ कर दिया गया, उसमें कोई कमी नज़र नहीं आई और इसलिए उसको रीइंस्टेट कर दिया गया। तो इस कंडीशन में उनको उस तरीके से एवरेज इमोलूमेंट्स ऐसे काउंट किया जाएगा जैसे कि उनको ना वो एब्सेंट थे और ना ही सस्पेंड थे, डिम्ड हो जाएगा वो। डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड ऑफ 10 मंथ फॉर एवरेज इमोलूमेंट्स। अब क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये 10 मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेस्ड ऑन द एक्चुअल नंबर ऑफ डेज कंटेंड इन ईच मंथ, गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन 16/6/2014। ये एक प्रिजम्पशन है। आज के डेट में गवर्नमेंट सर्वेंट जो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ होता है उस दिन रिटायर होते हैं, बीच में रिटायरमेंट नहीं होता है, बीच में इंक्रीमेंट भी आजकल नहीं होता है। सो लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ जो होता है वो डेट ऑफ रिटायरमेंट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का। सो यहाँ पर जो ये एग्जांपल दिया गया है ये सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, समझने के लिए है। समझने के लिए ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट 16/6 को रिटायर हो रहे हैं तो उनका जो 10 मंथ पीरियड जो होगा उसको कैसे काउंट करेंगे। तो उनके 10 मंथ का काउंट करने का तरीका ये है कि 18/8 से 13 से लेके एंड 31/8/13 ये 14 डेज हो जाएगा। इसके बाद से ऐसा उल्टा करते चलते हैं। ये देखिए 1/6 से लेके 16/6 को रिटायर हो रहा है, तो 1/6 से लेके 16/6 तक कितना हो गया, 16 डेज इनका हो गया, 16 डेज हो गया। इससे पहले वाले सितंबर 13 से लेकर के और मई 14 तक 9 मंथ हो गया। अब उसके बाद से
उससे पहले हमें अब 9 मंथ 16 डेज हो गया तो 14 डेज हमें ऐड करना है। तो 14 डेज कब से होगा? 18/8 से लेके 31/8 तक। कहने का मतलब ये है कि इनका जो 10 मंथ जो एवरेज इमोलमेंट्स काउंट होगा वो 18/8 से लेकर के 16/6/14 तक काउंट होगा। इसको उल्टा, ये लिखने में ऐसा हो गया है, आपको उल्टा ही इसको कैलकुलेट करना है। अगर 16/6/14 को रिटायर हो रहा है, ये 16/6/14 है, तो इस महीने में पूरे 16 डेज हो गए। इससे पहले वाले स्टैंडर्ड मंथ में 9 मंथ हो गया, और उसके बाद फ्रैक्शनल हो जाएगा। ये भी फ्रैक्शनल मंथ हो गया, ये भी फ्रैक्शनल मंथ हो गया। तो इसमें फ्रैक्शनल डेज 16 है, तो बाकी फ्रैक्शनल डेज 14 हमें ऐड करने पड़ेंगे, और इस तरीके से 10 महीने का हम एवरेज इमोलमेंट निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये 16/7/2009 को रिटायर हो रहे हुए हैं। तो जब 16/7/2009 को रिटायर हुए हैं तो 16/1/7/2009 से 15/7/2019 तक 15 दिन का हो गया। और उसके बाद से क्या हो गया? 1 अक्टूबर से लेकर के और 13 जून तक 9 मंथ का हो गया, और फिर 16/9/8 से 16/39/8 तक जो हो गया ये 15 दिन का हो गया। तो इस तरीके से इनका जो एवरेज 10 मंथ का कैलकुलेशन होगा, जो 16/7/2009 को रिटायर हो रहे हैं, इनका एवरेज जो कैलकुलेट होगा वो 16/9/2008 से होगा, तब जाकर के इनका 10 मंथ होगा। अब एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, 16 जुलाई 2009 वाला। ये 16 जून 2014 का है। ये 16 जुलाई 2009 वाला जो है, ये 16 जुलाई 2009 वाले का इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, 14 डेज हमने ये इसको काउंट कर लिया है। इसमें अगर फरवरी का महीना आता है बीच में कैलकुलेशन में, अगर फरवरी का महीना आता है तो चाहे वो 28 डेज का हो चाहे 29 डेज का हो, काउंट हमें उसको 30 डेज का ही करना है। हमारा जो फैक्टर है वो 30 डेज का है। तो अगर बीच में फरवरी आता है तो उसको हम 31 मंथ ही काउंट करेंगे, उसको हम 28 डेज 29 डेज 9 डेज के हिसाब से नहीं करेंगे। इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु वाज ऑन लीव ड्यूरिंग द लास्ट, इसको हम कर चुके हैं। आफ्टर हिज रिटायरमेंट द नोशनल पे के हिसाब से उनको पे किया जाएगा। सर्वेंट डाइज ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पेनाल्टी, अगर पेनाल्टी पीरियड में ही अगर इनका मृत्यु हो जाता है, then such penalty shall be taken into account for determining the average emoluments। तो इस तरीके से हम बड़े ही कम शब्दों में, बड़े ही आसान तरीके से हमने इमोलूमेंट्स एंड एवरेज इमोलूमेंट्स के बारे में समझ लिया है। इसकी ज़रूरत पड़ती है पेंशन डिसाइड करने में, इसकी ज़रूरत पड़ती है ग्रेच्युटी डिसाइड करने में, इसकी ज़रूरत पड़ती है इनकैशमेंट ऑफ लीव डिसाइड करने में। इसलिए ये चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का नीति श्लोक, लभेत सिकताशु तैलमपि यत्नप पीडनयन पिबेच मृग तृष्णिकासु सलीलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शशविषाणं मासादेय न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत। अर्थात यदि प्रयत्न पूर्वक पेराई की जाए तो संभव है बालू से तेल भी निकाला जा सके। यह भी संभव है कि मृग तृष्णा से कोई प्यासा व्यक्ति जल प्राप्त करके अपनी तृष्णा बुझा सके। कभी घूमते समय संभव है खरगोश के सिर पर सिंह भी नजर आ जाए, किंतु किसी भी भांति दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझा सकना सर्वथा असंभव है। कहने का मतलब यह है कि नीति श्लोक में असंभव चीज़ों को संभव होते दिखाया गया है। बालू से कभी तेल नहीं निकल सकता, चाहे जितना पेराई कर लीजिए, लेकिन नीति श्लोक में यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि बालू को पेर करके तेल निकाला जा सके। हो सकता है कि मृग तृष्णा से भी, मृग मरीचिका से भी प्यास बुझाई जा सके। ये भी हो सकता है कि घूमते घूमते कभी खरगोश के सींग भी नजर आ जाएं,
किंतु किसी भी भांति दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति को समझा सकना सर्वथा असंभव है। अतः ऐसे लोगों से थोड़े सावधान रहने चाहिए। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले क्लास में।